یہ کھیل شروع ہوا تھا -1 سے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، اور تب سے لے کر اب تک لڑائی یہی چل رہی ہے کہ قوم عمران خان کو مائنس ہونے نہیں دے رہی، نہ عمران خان ہار ماننے کے لیے تیار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ساری مخالف سیاسی جماعتیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ آدمی مائنس نہ ہوا تو ہم بہت حد تک مائنس ہو جائیں گے۔ اب اس مسئلے کی وجہ سے اب ایک نیا دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی حکومت کھل کر کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے خود کو علیحدہ کر لیں تو پھر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے بیانیے سے عمران خان صاحب سے اپنے آپ کو الگ کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، تو پھر ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک تو بات چیت کے لیے منت ترلا کوئی نہیں کر رہا، میں نے دیکھا نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ہم وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ملک کے لیے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سپیس چھین لی گئی اداروں سے یا پارلیمان سے وہ ان کو واپس دی جائے، سیاسی جماعتوں کو جمہوری حق ان کا لوٹایا جائے، اس کے لیے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، یہ بار بار کہتے ہیں جی دہشت گرد ہیں، ملک دشمن ہے۔ میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب نے کوئی مسلح ونگ بنایا ہوا ہے؟ آج تک آپ کو ایسی کوئی خبر ملی؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی اسلحہ آ گیا، یہ آ گیا جلسہ کے اندر یا جلسہ گاہ کے اندر، آج تک دکھائیں نہ کتنی بندوقیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ بندوقیں بے شمار دیکھی گئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے جلسہ گاہ میں تو نہیں دیکھی گئی۔ کوئی مسلح ونگ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا۔ کیا آج تک کوئی بوری بند لاش ملی جو پاکستان تحریک انصاف نے بوری بند لاشیں جو ہیں وہ جمع کی ہوں؟ وہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ کیا کوئی کرپشن کے میگا سکینڈلز عمران خان صاحب کے نکلے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے؟ بتائیں نا، عثمان بزدار پہ اتنے گھٹیا الزامات لگائے، ایک بھی مقدمہ بتائیں کہاں ہے اس کے اوپر؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی نا کہ اس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا وہ بھی کیا، اس نے ڈیل کر دی، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے بہت سارے افسران بشرا بی بی لگاتی تھی، وہ کدھر گئے سارے افسران جنہوں نے رشوت دی ہوئی تھی؟ کہتے تھے جی کہ عاصم منیر صاحب کے بعد ایک فائل ہے بشرا بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے عمران خان کو دکھائی تھی، وہ فائل گم ہو گئی، اس کے بعد کہاں گئی وہ فائل؟ اس فائل کے اوپر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بنا۔ پھر کیا کوئی علیحدگی پسند تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہے، کوئی منصوبہ اس طرح کا دیا ہے؟ کیا کوئی ٹارگٹ کلنگ عمران خان صاحب نے یا ان کی پارٹی نے کی ہو؟ کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے بندے نے خود کش حملہ کر دیا ہو، یا کبھی کسی پولیس والے یا دیگر فورسز کے بندے میں سے کسی ایک کو بھی گولی لگی اور وہ گولی لگنے سے زخمی ہوا ہو یا شہید ہوا ہو، اور یہ بتائیں جناب ان کو پاکستان تحریک انصاف نے مارا؟ ایک بھی واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اس کو دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ملک دشمن اور غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ پاکستان میں نا ایک پرانا ٹرینڈ ہے، جو کہے کہ آئین پر عمل کرو وہ غدار ہے، ملک کا دشمن ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ۔ جو کہے ادارے خصوصاً فوج سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھے، جو یہ کہے کہ ملک بھی میرا فوج بھی میری، جو اپنی زندگی اپنے ملک کے نام کر دے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لے، ایسے آدمی کو یہ کہتے ہیں دہشت گرد بھی ہے، غدار بھی ہے، سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے۔ جو شخص بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے وہ دہشت گرد ہے، وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جو بیرونی طاقتوں کو ایبسولوٹلی ناٹ کہے، جو غلامی سے انکار کر دے، جو امیر اور غریب کا فرق اس ملک میں ختم کرنے کی کوشش کرے، جو پہلی بار ناموس رسالت اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے عالمی سطح پر آواز اٹھائے، جو شخص بھی یہ کرے گا یا جو لوگ یہ کرتے آئے وہ سارے غدار ڈکلیئر ہوئے۔ جن لوگوں نے آزادی سے بات کرنا چاہی وہ سارے غدار ڈکلیئر ہوئے۔ جنہوں نے بات کی کہ ادارے سیاست میں مداخلت کیوں کرتے ہیں، ان کا کیا حق ہے، وہ سارے غدار اور سیکیورٹی تھریٹ بن گئے پاکستان کے لیے، سارے کے سارے، کسی ایک کو نہیں چھوڑا، فاطمہ جناح تک کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ پاکستان کی کہانی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں ایک سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے عمران خان سے پوچھ لیا نام لیے بغیر کہ تم ہو کون، ہماری حیثیت کیا ہے۔ تب سے لے کر اب تک لوگ لگاتار بتا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ عمران خان ہے کون اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ لوگ بتا بتا کر تھک گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی شخصیت اور کریکٹر اتنا بڑا ہے کہ اس کا احاطہ لوگ نہیں کر پا رہے۔ کتنے سارے میدان ہیں دنیا کے جہاں عمران خان صاحب نے نام روشن کیا ہے، چاہے وہ فلائی کام کرنے کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہو، ناموس رسالت کے حوالے سے ہو، ایک لوگوں کو موٹیویشن دینے کے حوالے سے ہو۔ یعنی عمران خان صاحب نے لیڈر کی تمام اوصاف، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے، پاکستان کے اندر کوئی آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی سیاسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو تب سے لے کر اب تک لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لگاتار اتنے دنوں سے بتا ہی رہے ہیں کہ یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، اور سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا۔ میں نے ناظرین ایک سروے کروایا سوشل میڈیا پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سروے ہے۔ اس سروے میں میں نے سوال پوچھا کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ عمران خان صاحب جو تنقید کرتے ہیں، کیا وہ تنقید پاکستان کے اوپر ہے
या पाकिस्तान की पूरी फौज के ऊपर है या आसिम मुनीर साहब के ऊपर है? क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान साहब के मुखालिफिन है वो ये कहते हैं इमरान खान ने फौज पे हमला कर दिया है, इमरान खान ने रियासत पे हमला कर दिया है। वो कहते हैं जी इमरान खान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हमने सर्वे करवा लिया। इसमें मैंने सर्वे जो करवाया ना एक नए तरीके से करवाया, क्योंकि आजकल बॉट्स हैं, आजकल जाली तरीके से अगर आप सवाल जवाब पूछें तो वो ऑप्शन को करके और उसके अंदर से वो अपनी वोटिंग करवा लेते हैं, जाली वोट भी पड़ जाते हैं सर्वेस के अंदर। ये नया तरीकाकार है। ट्रेंड एक चल रहा होता है, अचानक से एकदम बहुत सारे वोट्स पड़ते हैं तो ट्रेंड को चेंज करते हैं। लिहाजा एक नया तरीका है, आप इससे भी सर्वे करवाया करें। इसमें आप ऑप्शन दे दें 1 और 2 और लोगों से कहें कि कमेंट के अंदर लिखें। मैंने लगभग कोई 650 के करीब कमेंट्स पढ़े हैं, अभी तक 650 कमेंट्स आए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया। मैंने कहा जिन लोगों को यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना है वो कहें हां, और जिन्हें लगता है कि आसिम मुनीर पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पर तनकीद करना तो आप नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे सब लोगों ने नहीं का ऑप्शन लिया। मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिन्होंने हां का ऑप्शन लिया, यानी 1 को चूज किया। 3 लोग मिले लगभग 600 लोगों में से, आधा फीसद बनता है। यानी आधा फीसद पाकिस्तानियों को यह लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, यह पाकिस्तान के खिलाफ है ये बात, या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ये बात। और भाई ये तो फौज के हक में है कि फौज का सियासत के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये तो फौज के हक में खिलाफ कैसे हो गया? तो पाकिस्तानी भी यही सोचते हैं। 99.5% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आर्मी चीफ पे तनकीद इमरान खान कर रहे हैं कि उनकी गलत पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद का कोई पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं है, ये रियासत के खिलाफ नहीं है, ये कोई फौज के खिलाफ साजिश नहीं है। अब 3 लोग कौन है जिन्होंने उल्टा वोट डाल दिया, जिन्होंने कहा नहीं ये फील्ड मार्शल पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद है। इनमें एक मोहम्मद उबैद सरफराज है, इनके टोटल 23 फॉलोअर्स हैं। 2022 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। और एक इमरान सादिक साहब हैं, इनके 112 फॉलोअर्स हैं, 2014 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। एक अर्तुगरुल बे साहब है, इनका ये कोई फेक अकाउंट है, 172 इनके फॉलोअर्स हैं और 2023 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। बस इन लोगों ने किया। और किसी साबिर भाई ने एक बड़ा जबरदस्त सर्वे करवाया, साबिर शाकिर साहब ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल में DGISPR किसके तर्जुमान है? ये DGISPR साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इदारे के अंदर भी जो हमें इतला मिली है वो ये है कि बड़ा सख्त रिएक्शन है और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि DGISPR ने किया क्या, इदारे के ऊपर इतना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। पूरे इदारे की जो एक इमेज है जिसको बड़ी मुश्किल से इदारा संभालता है, अव्वल तो वो इमेज अब इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरे इदारे की खराब हुई है। ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, यानी सारा ही काम खराब कर दिया पकड़ के। तो सवाल पूछा साबिर शाकिर भाई ने कि DGISPR किसकी तर्जुमानी करते हैं? ऑप्शन दिए थे फौज की, दूसरा ऑप्शन दिया था आसिम मुनीर की, तीसरा ऑप्शन दिया था आले शरीफ की। तो जनाब सिर्फ 6% पाकिस्तानियों को लगता है कि DGISPR फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब ये DGISPR साहब को सोचना चाहिए कि 94% पाकिस्तानियों को लगता है कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की और शरीफ खानदान की। 65% कहते हैं आसिम मुनीर साहब की और 29% कहते हैं आले शरीफ की। तो फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी फौज की तर्जुमानी करना है। तर्जुमान पाक फौज का उनका ओहदा है DGISPR का। और यहां पे सिर्फ 6% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि या तो वो आसिम मुनीर साहब की तर्जुमानी करते हैं या फिर वो तर्जुमानी करते हैं जनाब आले शरीफ की। अब नाजरीन, फैसल वाडा साहब और 1-2 लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं DGISPR के बाद। बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाडा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुरम दिशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही, मैं हैरान हो रहा हूं, धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। और फिर जवाब तो आना था। सेनेटर खुरम दिशान साहब का जवाब है, उन्होंने कहा वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है। वैसे इनका आमना सामना हो जाए ना तो मैं खुरम दिशान को इतना जानता हूं कि फैसल वाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। फैसल वाडा में हौसला नहीं है, हौसला होता तो 2 दिन इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता, हौसला नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने भी फैसल वाडा को मुखातिब किया, उन्होंने कहा बेनामी सेनेटर की तरह के फौज के तर्जुमान जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं, वाज़ेह है कि इनके पीछे जो डाकू हैं
वो भी नकाब उतार कर सामने आ गए हैं। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि फौज एक पार्टी को कुचलने के लिए खुद मैदान में आ गई है। आप अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें। आपने कई जंगें जीती होंगी, मगर इस अवाम से जंग और अवाम ने जिस लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके साथ जंग करना आपके बस की बात नहीं है। सारे इकट्ठे होकर पड़ गए इमरान खान को, और इकट्ठे होकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो सिंपल ये है। मुझे नाज़रीन बड़ा अच्छी तरह याद है, ये जो बड़के मारने वाले लोग हैं ना, इनकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम लोग जब छोटे थे तो सब बच्चों की तरह हमें बड़ा शौक था कि हम जानवरों को देखें, चिड़ियाघर जाएं, वहां पे भालू है, शेर है, चीता है, ज़राफ़ा है, ज़ीब्राज़ होते हैं, हाथी भी होता था। तो बड़ा लगाव होता है ना बच्चों को जानवरों के साथ, हमें भी था। तो हम अपने पेरेंट्स से जिद करके, बाकी बच्चे भी सारे, हम लोग जाते थे चिड़ियाघर लाहौर में रहते थे, वहां जाते थे देखने के लिए, छोटे छोटे होते थे। तो तब ना कई ऐसे लोग आ जाते थे जो बड़े ओछे काम कर रहे होते थे, बहुत अजीब, ऐसे जैसे कि सबका सुकून उन्होंने खराब किया होता था चिड़ियाघर में। कभी बंदर को छेड़, कभी हाथी को छेड़, कभी इस जानवर को छेड़। हालांकि जगह जगह लिखा होता है कि आपने इन जानवरों को छेड़ना नहीं है। तो जो बब्बर शेर का पिंजरा था ना, उसके बाहर बहुत रश लगा हुआ होता था। ये मैं अपने बचपन का आपको वाकया सुना रहा हूं। तो वहां पे ना ये बहुत सारे लोग आए हुए थे, ये अब खड़े हो गए वहां पे। ये गंवार किस्म के लोग थे, इन्हें अकल मौत कोई नहीं थी, फैमिलीज को देखने भी नहीं दे रहे थे, और वहां पे इन्होंने इकट्ठे जमघट्टा लगा दिया। आवारा किस्म के लोग थे। शेर को कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई उसे आवाज निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मेरा अपने आंखों देखा वाकया है। मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि शेर काफी देर तक ना वहां बैठा रहा, लेटा रहा। ये उसको कभी मुंह चढ़ाए, कभी आवाज निकाले, कभी कुछ करे। एक लड़का तो ऐसा बदतमीज था, वो छलांग मार के अंदर जाकर उसको हाथ लगा के पिंजरे को वापस आ गया। डबल पिंजरा है ना, और वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। एक बंदे ने पानी मुंह में डाल के उसने कुर्ली भी की। तो हम ये सोच रहे थे किसी को शिकायत लगाएं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, छोटे छोटे होते थे हम। इतने में मैंने देखा कि शेर उठा और वो धाड़ता हुआ एकदम पिंजरे की तरफ आया, और इन लोगों की मैंने दौड़ें देखी हैं। ये जितने लोग शेर को छेड़ रहे थे ना, इनको मैंने उल्टे कदम पीछे की तरफ भागते हुए देखा है। हालांकि सबको पता था वो पिंजरे में बंद है, सबको पता था कि वो जंगले के अंदर उसको कैद किया हुआ है, सबको पता था कि वो बाहर नहीं निकल सकता इस जेल में से। यही हाल आज इमरान खान का है। उसको जेल में डाल के ना बड़े बड़े लोग बड़के मारते हैं। कोई इधर छलांग मारता है, कोई इधर छलांग मारता है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बहन के बाल पकड़ के खींचता है, कोई उसे ओए तोए करता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे ज़हनी मरीज कहता है, कोई उसे बदतमीजी करता है। तो ये सारे लोगों की औकात बिल्कुल वैसी है जैसी वो पिंजरे के बाहर खड़े हुए लोगों की थी। और शेर बैठा हुआ इन्हें देख रहा है, वो अंदर से एक धाड़ मारता है और इनकी दौड़ें लग जाती हैं। एक धाड़ मारता है अंदर से, वो इनकी दौड़ें लग जाती हैं। फर्ज करें अगर वो शेर बाहर आ गया तो इनके साथ क्या होगा। ये चिड़ियाघर तो क्या, लाहौर की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। तो नादरीन, ये मैंने जो वाकया देखा, मुझे ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है। इमरान खान को भी पिंजरे में बंद किए हुए एक शेर की तरह आप ले सकते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए आवारा किस्म के लोग, जिनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है और कोई उनके अंदर दिल गुर्दा नहीं है, वो उसको छेड़ रहे हैं। और जिस वक्त वो उठता है, जरा सा धाड़ता है, इनकी दौड़ें लगती हैं। और अगर कहीं वो बाहर आ गया इस पिंजरे से, तो इन सबको पता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, ये जो आज मजे ले रही हैं, ये कल को पछताएंगी। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी जिंदगी में अपनी चंद गलतियों पर पछताते रहे ना, इस तरह ये लोग बहुत पछताएंगे, बल्कि इनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैलकुलेटेड मिस्टेक्स की थी, इन्होंने तो तबाहियां ही फेर दी हैं, इन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं, और इस लेवल की लिमिट्स क्रॉस की हैं कि इनके पास कल को कोई जस्टिफिकेशन रहेगी भी नहीं। तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहां पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पे मौजूद थे, और पुलिस एक मरतबा फिर वाटर कैनन लेकर आई, और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पे फेंका जा रहा है, और वो भी बहुत जोरदार प्रेशर के साथ। अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई। साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है, और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह जरूर है, लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है।
सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाजें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही है कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं है क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आजादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आजादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आजादी। ये मत खौफजदा हो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है, शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आजाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फोन आ गया था तो मेरी फला मजबूरी है। पाकिस्तान आजाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा, ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फातिमा जिन्ना से सुनते थे। वो ये बातें करती थी, लोगों को जगाने की कोशिश करती थी, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफा उन्होंने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया, पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, अमेरिकन मीडिया से उन्होंने बात की है। तो जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है ना, वो सुनने और समझने वाली बात है। ये एक ऐसे आदमी की बात है जिसने बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर, यानी उन्होंने बिला वजह भड़क मारने से बेहतर, सियासतदान नॉर्मली यही करते हैं कि गेम उठा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात की और इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो निजाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20 या 30 हजार बंदा निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते, हम सोच समझ कर काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए दबाव यही है ना कि एक तो कारकुनों का दबाव भी होता है, आलमी दबाव भी आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है कि निकलो फौरन, लेकिन बगैर तैयारी के निकलना अकलमंदी नहीं होगी। तहरीके इंसाफ को जब भी निकलना है तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ निकलना होगा और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर निकलना होगा। ये एहतजाज पाकिस्तान के हर कोने में, हर जगह पे होगा तो कामयाब होगा और एक दिन तो ये होना है। देखिए जिस लेवल का पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत है, जिस तरीके से पाकिस्तान के निजाम के ऊपर कब्जा किया गया है, जो पाकिस्तानियों की माशी लिहाज से इस वक्त हालत हो चुकी है, इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस करें तो कोई ना कोई किसी दिन एक ऐसी तहरीक जन्म ले लेगी कि जिसे पब्लिक ओन कर लेगी, और जिस वक्त सारी पब्लिक निकल आएगी तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी दिनों के अंदर। फायदा तभी होगा, ये 1 लाख 1.5 लाख, मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि 2-4 लाख बंदे निकालने से भी आप पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धकेल कर वापस उनके आईनी किरदार में नहीं भेज सकते। इसके लिए पूरे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम निकालें, सब मिलकर मेहनत करें, सारा पाकिस्तान निकले और निकलकर फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप ये कहें कि जनाब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको लड़ाई का काम सौंपा गया है, उसके बदले में हम आपको इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, लिहाजा आप अपने असली काम में वापस चले जाएं और मुल्क के बारे में सोचना आप बंद कर दें। ये हमारा मुल्क है, हम इसके बारे में खुद सोच लेंगे, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें। जब ये चीज हो जाएगी तो पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं, ये पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। स्काई न्यूज के ऊपर इंटरव्यू है, स्काई न्यूज ने जो इसका हेडलाइन एक बनाया वो ये है कि इमरान खान सन फेयर दे मे नेवर सी हिम अगेन एज फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन डेथ सेल। जी हमें ये खदशा है, इमरान खान साहब के बेटे ये कहते हैं कि हमें इस बात का डर है कि इस बात का खौफ लाक हो गया है कि शायद हम इमरान खान साहब को, अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बात इमरान खान साहब के बेटों ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया, ये क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा लंबा सेशन था। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर चीजें और जगह भी दिखाई जहां उनके वालिद बैठते थे, इमरान खान साहब उस घर में, वो कुर्सी और वो जगह भी दिखाई। फिर इमरान खान साहब के एक बेटे ने, कासिम ने, गालिबन जो शर्ट पहनी हुई थी वो इमरान खान साहब की शर्ट है, यानी वो माजी में इमरान खान साहब को वो कई दफा पहने हुए दिखाया गया, वो एक अपर है और वो उसी तरह से है। इमरान खान साहब की उसमें तस्वीरें भी है, मे बी उनके वालिद साहब का ही अपर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुरे नहीं,
बल्कि इंतहाई खौफनाक है। जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। उनकी जिंदगी से मुताल्लिक खबरें बेहद ज़हनी दबाव का बायस बनती हैं, खास तौर पर जब हम यहां बिल्कुल बेबस हैं और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। ये जनाब उन्होंने बैन अवी मीडिया स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। मजीद उन्होंने क्या बातें की ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कुछ मुतालबात भी किए। एक मुतालबा उन्होंने किया कि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए, कैदियों के हकूक दिए जाए इमरान खान को। नंबर 2, अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। अदालतें तो पाकिस्तान में रही कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो अदालती अहकामात मुलाकातों वाले उन पर तो अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 3, आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए। नंबर 4, इमरान खान का जाती मुआलिज से मुआयना करवाया जाए। नंबर 5, इमरान खान का आजादाना मॉनिटरिंग कमीशन के जरिए कंडीशंस का उनका मुआयना किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं जो फौरी तौर पे अगर मंजूर हो जाते हैं तो काफी रिलीफ इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, वो पिछले 2 बरस से ज्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में मौजूद हैं जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारा अपना राब्ता हुआ 5 महीना हो गया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ और चीजें कही। एक तो क्या इमरान खान डील कर लेंगे ये सवाल हुआ। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद कहते हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना है। जितना हम जानते हैं कि हमारे वालिद यहां रहकर हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, यानी हम तो ये चाहते हैं कि हमारा वालिद इधर आ जाए, वो यहां पे आके हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, एंजॉय करें। आसिम मुनीर साहब का वो मामला जो अटका हुआ था उनके नोटिफिकेशन का कि उनके मामला सारे ठीक हो जाएं, यानी 27वीं आईनी तरमीम इस बीच में हो गई, इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलवाया गया। अभी तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है। ये मुख्तसर मुलाकात हुई है 20 मिनट की, और 20 मिनट की मुलाकात में जितनी चीजें हो सकती थी बस वही इमरान खान साहब को बताई गई और उन्होंने फटाफट पैगामात बाहर भिजवाए, कुछ अपनी पार्टी के बारे में, कुछ अवाम के बारे में और कुछ सूरत हाल के बारे में। जो इमरान खान साहब ने चीजें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और जो उज़मा खान वहां पर देख कर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो 4 हफ्ते तक इमरान खान साहब को लगभग किसी को मिलने नहीं दिया गया, यानी उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। और न सिर्फ इमरान खान साहब को, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकातें बंद की गई हैं। उनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बच्चियों को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने जो जेल में अपनी बहन उज़मा खान को बताया, उन्होंने बाहर आके जो चीजें बताई वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं, क्योंकि तफसील से जो चीजें हैं वो बाद में जब वो कहीं बैठेंगी तसल्ली से तो वो एक एक करके पॉइंट लिखवाएंगी, तो कोई चीजें बाद अगर ज़हन में नहीं होती वो भी वो बताएंगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उनके अपने सोशल मीडिया से, एक्स अकाउंट से। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने बाहर आकर बताया वो मैं आपको बताया। तो एक उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मरतबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ, यानी बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो, क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूं बड़े लंबे अरसे के लिए। तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात